A very good afternoon, dear students, dear learners, dear followers, and dear friends. Me, Mohammad Yasin Baksh, again came back to upload a new video of ISC Board 12th class syllabus, and the title and the story of ISC Board, a short story collection book, Frids. Now in today's video we will discuss about the story Frids, written by or penned by Satyajit Ray, a great Bengali Indian writer, belongs to Bengal, Indian originated writer. He was not only a writer, but Satyajit Ray was the greatest filmmaker, critics, music composer, calligrapher, and so on. As I have discussed the topic to you, we will discuss in today's video about a story of ISC syllabus book, short story Frids, and this Frids is the name of a doll. This complete story belonged or moved on with two friends in conversation mood, Shankar and Jayanto. Shankar, the logical man, rational man, but Jayanto was an emotional man. This complete story about a doll named फ्रिड्स. प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों और दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, नए वीडियो को लेकर। और आज के इस वीडियो में हम और आप विस्तार से बात करेंगे एक स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है, जिसका टाइटल है फ्रिड्स, और जिस कहानी को भारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बंगाली राइटर सत्यजीत रे ने अपने कलम से सजाया है, अपने शब्दों से सजाया है। और सत्यजीत रे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वास्तव में सत्यजीत रे जो हैं वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े फिल्मकार भी थे, बहुत बड़े संगीतकार भी थे, बहुत बड़े फिल्म आलोचक भी थे, और इसके अलावा कैलीग्राफर भी थे। और इसके साथ साथ जो सत्यजीत रे हैं, ये फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा एक अवार्ड हो सकता है, वो उस अवार्ड से सुशोभित किए गए थे, दादा साहब फाल्के अवार्ड से। और आइए बात करते हैं कि ये जो पूरी कहानी है फ्रिड्स, जो आईएससी बोर्ड के सिलेबस शॉर्ट स्टोरी में आपकी बुक में शामिल है, इस पूरी कहानी का ये जो टाइटल है फ्रिड्स, फ्रिड्स जो है वो एक गुड़िया का नाम है, एक डॉल का नाम है। और ये पूरी कहानी जो है वो दो दोस्त हैं, एक का नाम है शंकर, जो कि विचारशील है, जो थोड़ा सा समझदारी की बात करता है, कहीं ना कहीं लॉजिक की बात करता है, और एक दूसरा दोस्त है जिसका नाम है जयंतो। और जयंतो जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल है, सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं जज्बाती है, और चीज़ों को सोचता ज़्यादा है और बोलता कम है। और ये कहानी जो है वो कन्वर्सेशन पैटर्न पे है, जयंतो और शंकर के बीच में पूरी बातचीत हुई है। और इस पूरी कहानी को हम लोग विस्तार से समझेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग समझते आए हैं सभी कहानियों को। और इस कहानी को भी हम लोग दोनों ही भाषाओं में, यानी अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा दोनों में ही समझेंगे। और पहला स्टार्टिंग जो होगी वो इंग्लिश में हम लोग इस पूरी कहानी को जो है वो हम नरेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कहानी में क्या है, और उसके बाद इस पूरी कहानी को आपको हिंदी में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सत्यजीत रे की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना और सुप्रसिद्ध कहानी, जिस कहानी का नाम है Frids. Frids, this is a story of a doll named Frids, and this doll belonged to, Jayanto had a doll named Frids, and this doll was given to him by his uncle, or at Bundi, when he was in his childhood age, or very small in his age, and he lived in Bundi in Rajasthan, a small town of Rajasthan, or a small, we can say just a village type, named Bundi. And Jayanto, when received or got this doll named Frids from his uncle, he
played with this doll day and night, even all day. Even his parents warned him not to play with the doll day and night. He just had to do some other work. But Jayanto played or did engage his time with the doll and talked with him, talked with her, spent his time and played with it. Once Jayanto played with the doll in the ground at Bundi, where he lived with his parents in his childhood age in Rajasthan. He just had entered in room for some other work and left the doll in the ground openly. Just a stray dogs came and turned and spoiled the doll. When Jayanto came back and noticed and saw the misery or poor condition of the doll, he became very sensitive and emotional, and after that he buried the doll under a Devdar tree which was situated in Bundi, in the ground or field or Maidan in Bundi where Jayanto lived. This Devdar tree was the sign of his memory when he became older. Jayanto's friend named Shankar, after 31 years, Jayanto and Shankar decided to go to Rajasthan. Shankar wanted to go some historical places, but Jayanto decided to go at Bundi. And when Jayanto and Shankar reached Bundi in Rajasthan, they stayed in Circuit House. They had taken rest on the same day when they reached there, and after next day the driver of the car was waiting outside of both of them to take them somewhere to visit. Then Jayanto decided to visit Bundi, a small village or town of Rajasthan. As Jayanto and Shankar reached Bundi, Jayanto just remembered his old memories or the things when he was in Bundi and lived there with his parents in his childhood age, and one by one he remembered all the things as he moved on in the way. As they reached Bundi, Jayanto noticed the same Devdar tree stood there very gallantly, and Jayanto recognized it in sharply and announced something to his best friend Shankar. Yes, it is there where it was before. Jayanto and Shankar had stayed there for some time. At one night, when Jayanto and Shankar were sleeping in the room, sudden Jayanto woke up and said in some noise or harsh voice, as there was some noise like a cat or rat outside or near the window. Shankar didn't notice about it. On the next day, when they were sleeping, Jayanto sudden second time woke up and
called Shankar that there was something in the room which was moving on his chest. Over the cover he had taken quilt to save himself from cold, and he had noticed that on the quilt there was someone walking on his chest or moving on his chest. Shankar just imagined about that surely, obviously, it would be a rat or some small other insect or tiny animal which was moving. But Jayanto told about the story to Shankar of his old age or of his childhood age when he lived in Bundi, and how he buried his doll Fritz under the Devda tree. And after that, Jayanto just thought about it and imagined about it that there was nothing else but Fritz, and it was the ghost. Shankar just wanted to divert Jayanto's mind from the side of Fritz or doll, but Jayanto asserted Shankar that surely or obviously it was Fritz who walked over his chest over the quilt or cover. Now, as I have narrated in the starting of the video that Shankar was a rational or a logical man, then he decided to dig up the place where the doll was buried by Jayanto, so that the doubts of Jayanto's mind may be removed. Now Jayanto and Shankar decided to dig up the place, exactly that place where the doll was buried, and they hired a man who digged up the place. And after some time, as Jayanto and Shankar ordered or requested that man who was digging the place that they had to dig near about 8 to 12 inches, and that man digged up the place under the Devda tree, the exact location, and after some time Jayanto, Shankar and the labor who was digging the place became totally surprised and astonished, having seen a 12 inches human skeleton under the ground or the grave where the doll was buried before 31 years ago. It was the size of the doll, 12 inches. It was the same size of the doll, and this same size skeleton found here in the grave when it was digged up or uncovered up. It proved here that the Fritz was a non-active ghost, and the doubts and the mystery and the secrets were remained in the minds of readers, and the story completed. This was the way of the great Bengali Indian originated writer Satyajit Ray, that in this whole story he somewhere just made a mystery
about the doll, about the Fritz, and engaged each and every reader to read it till the last line. प्रिय छात्रों और प्रिय दोस्तों, हम और आप जैसा कि बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको सत्यजीत रे ने रचित किया है, अपने कलम से सजाया है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। आइए इस कहानी को विस्तार से हिंदी में समझते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। सत्यजीत रे की ये जो कहानी है फ्रिट्ज, ये एक डॉल के बारे में है। ये जो पूरी कहानी है ये दो मित्रों के बीच एक कन्वर्सेशन पैटर्न पर सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। और वो जो दो दोस्त हैं जिनमें एक का नाम शंकर है और दूसरे का नाम जयंतो है। शंकर जो कि एक थोड़ा सा रैशनल है, यानी लॉजिकल है, हर बात को लॉजिकल वे में कहता है, प्रूफ करता है, कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ उसका जो दूसरा दोस्त जयंतो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल है, सेंसिटिव है और चीज़ों को गंभीरता से लेता है और विचारशील रहता है। जयंतो अपने बचपन में राजस्थान के एक छोटे से कस्बे या गांव जिसका नाम बूंदी था, अपने माता पिता के साथ बूंदी में रहा करता था। और बूंदी में उसके एक अंकल थे जो कि रशिया से उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आए थे, गुड़िया लेकर आए थे जिसका नाम फ्रिट्ज था। और उसके अंकल उसको ये बताते हैं कि इस गुड़िया को इसी नाम से पुकारना। जयंतो इस गुड़िया के साथ दिनों रात खेला करता था, अपना समय गुजारा करता था, यहाँ तक कि इस गुड़िया को पाने के बाद तो सब कुछ भूल गया था और दिन और रात केवल इस गुड़िया के साथ अपना समय बिताता था। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसको कई बार सचेत भी किया कि वो कुछ और काम भी किया करे, केवल दिन और रात गुड़िया के साथ मत खेला करे। लेकिन जयंतो का इन किसी बात पर कोई असर नहीं पड़ता था और वो केवल अपना समय जो है वो गुड़िया के साथ व्यतीत करता था। एक बार जयंतो जो है वो किसी काम से मैदान में खेल रहा था, अचानक से उसे कुछ काम याद आता है, कोई बात याद आती है और वो घर के अंदर जाता है और गुड़िया को वही मैदान में छोड़ जाता है। जब जयंतो लौट कर आता है बाहर तो देखता है कि गुड़िया को कुछ डॉग्स, जो कुत्ते जो सड़क पर घूमने वाले जंगली कुत्ते होते हैं, वो शायद वहां आ जाते हैं और उस गुड़िया को चीर फाड़ देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। और जयंतो उसको देखकर बहुत निराश होता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव था इसलिए उस गुड़िया को वो एक दफनाने की जो प्रक्रिया होती है वो करता है। और वो 12 इंच की जो गुड़िया थी उसकी फ्रिट्ज जिसका नाम था, उसको जयंतो वहीं एक देवदार पेड़ के नीचे दफना देता है। और इस प्रकार से उस गुड़िया का फिलहाल अंत हो जाता है। इसके बाद जयंतो के माता पिता शायद बूंदी को छोड़ देते हैं। 31 वर्षों के पश्चात जयंतो अपने मित्र शंकर के साथ एक बार पुनः राजस्थान जाने का निश्चय करते हैं घूमने के मकसद से। और तभी जयंतो और शंकर जो हैं वो राजस्थान पहुंचते हैं। शंकर और जयंतो उस दिन आराम करते हैं राजस्थान पहुंचने पर, और दूसरे दिन कार का ड्राइवर बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है ताकि उनको राजस्थान का भ्रमण कराया जा सके। तभी जयंतो और शंकर के बीच में ये तय नहीं हो पाता है कि घूमने कहाँ जाया जाएगा। तभी अचानक से जयंतो कहता है शंकर से कि हम बूंदी चलेंगे। बूंदी जो कि घूमने के लिए बहुत बड़ा और अच्छा स्थान, यानी एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी जगह नहीं थी घूमने के मकसद से। लेकिन अब क्योंकि जयंतो की ये जिद थी या उसने ये आग्रह किया था शंकर से कि वो बूंदी जाना चाहता है, तो शंकर और जयंतो बूंदी का निश्चय करते हैं जाने का। बूंदी पहुंचते हैं और सर्किट हाउस में जहां ठहरे होते हैं वहां से निकलते हैं, बूंदी पहुंचते हैं। बूंदी पहुंचने पर शंकर और जयंतो उस जगह पर प्रवेश करते हैं जहां बचपन में शंकर बताता है जयंतो शंकर को कि मैं बचपन में अपने माता पिता के साथ यहाँ रहा करता था। और वो पूरी कहानी जो उसकी गुड़िया से संबंधित थी, गुड़िया का नष्ट हो जाना, कुत्तों का गुड़िया को चीर फाड़ देना, जयंतो का गुड़िया को दफनाना, और ये पूरी कहानी जयंतो जो है वो शंकर को बताता है। और जयंतो और शंकर जो हैं वो घूम घाम के उस जगह से लौट आते हैं। रात्रि का समय होता है, एक बार शंकर सो रहा होता है, तभी जयंतो जो है वो अचानक से जाग जाता है। जयंतो के जागने पर वो ये कहता है, शंकर को बताता है कि उसने जो है वो अपनी दरवाजे या खिड़की के पास से एक आहट सुनी है, आवाज़ सी सुनी है। तो शंकर उसको समझाने का प्रयास करता है कि निश्चित रूप से ये जो आवाज़ है ये किसी बिल्ली या किसी चूहे की आवाज़ होगी, शफलिंग साउंड होगी। लेकिन जयंतो कहता नहीं, ये कुछ और बात है और मेरे दिमाग में जो है वो मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है माजरा कुछ और ये बिल्ली या
चूहे की आवाज़ नहीं हो सकती। तभी दोनों फिर से सोने का प्रयास करते हैं। अचानक से दोबारा शंकर सो रहा होता है, जयंतो के साथ फिर कोई घटना घटती है। जयंतो अचानक से जाग जाता है, शंकर को बताता है कि उसने किसी चीज़ को महसूस किया है जो उसकी रज़ाई के ऊपर से चलती हुई उसके ऊपर से निकल गई। जयंतो कहता है कि शंकर जयंतो को समझाने का प्रयास करता है कि शायद कोई चूहा वगैरह रहा होगा। तो जयंतो कहता है कि नहीं, ये चूहा तो नहीं था, मुझे लगता है कि ये फ्रिट्ज थी, ये वो वही गुड़िया थी, ये उसका भूत था, शायद घोस्ट था जो मेरे ऊपर से निकल कर गया। और शंकर जयंतो की इस बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा रैशनल था, वो थोड़ा सा लॉजिकल आदमी था और इन सारी बातों पर शायद वो विश्वास नहीं करता था। तभी वो दोनों लोग देखते हैं कि रज़ाई के ऊपर किसी चीज़ के मार्क जो हैं वो निशान बने हुए थे, और इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया जा रहा था कि आखिर ये किसके निशान हैं। तभी शंकर जो है वो दूसरे दिन देखता है कि जयंतो बड़ा विचारशील है, परेशान है, शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है। वो सोचने और समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर क्या माजरा है। तो शंकर उससे कहता है कि ठीक है, अगर गुड़िया के बारे में तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई बातचीत चल रही है, कोई विचार चल रहे हैं, तो आओ हम उस जगह को खुदवाते हैं। तभी शंकर ये मशवरा, ये सलाह देता है कि हम उस जगह की खुदाई करवाते हैं जिस देवदार वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गुड़िया को दफनाया था। ये निश्चय हो जाता है कि उस जगह की खुदाई की जाएगी। तभी शंकर और जयंतो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो इस जगह की खुदाई कर सके। तभी वो एक लेबर, एक मजदूर को हायर्ड करते हैं जो पास के ही खेत में या बाग में माली का कार्य करता था। उससे आदेशित करते हैं कि तुमको 8 से 12 इंच तक लगभग इस जगह की खुदाई करनी है। वो व्यक्ति उसकी खुदाई शुरू करता है। खुदाई करने के पश्चात ही जब लगभग 8 से 12 इंच की खुदाई हो जाती है, जयंतो, शंकर और वो व्यक्ति जो खुदाई कर रहा था बड़े अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह जहाँ पर गुड़िया को दफनाया गया था आज से 31 साल पहले, उस जगह पर एक मनुष्य रूपी कंकाल दिखता है, बिल्कुल सफ़ेद, और उस कंकाल का जो आकार होता है वो लगभग 12 इंच का होता है। और ये जो 12 इंच का आकार था, ये उस गुड़िया का आकार था जहाँ पर इस गुड़िया को दफनाया गया था फ्रिट्ज को 31 वर्ष पहले। तो पूरी कहानी उस कंकाल को देखने के बाद ये निकल कर आती है कि इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में वो गुड़िया जो है एक नॉन एक्टिव घोस्ट थी, एक नॉन एक्टिव प्रेत या भूत थी, जो जयंतो जिसके साथ खेला करता था बचपन में, और जो उसके अंकल ने उसको गिफ्ट की थी रशिया से लाकर। और इस प्रकार से ये एक जो रहस्य था, ये जो एक मिस्ट्री थी, ये कहीं ना कहीं अंत तक रहस्य ही बना रहा। और ये जो वर्णित करने का अपना एक चिर परिचित अंदाज है सत्यजीत रे का, ये कहीं ना कहीं वो अपने इस चिर परिचित अंदाज में सफल हुए हैं। और अंत तक जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी को, उनके दिमागों में ये विचार करता रहा कि आखिर अंत में हुआ क्या होगा। और तब तक वो इस सस्पेंस की गुत्थी जो है वो नहीं सुलझा सके होंगे, जो कि अंतिम पंक्ति को पढ़ने के बाद भी गुत्थी ही बनी रही कि आखिर अंत तक हुआ क्या होगा। और सत्यजीत रे का यही कमाल है, उनकी राइटिंग स्किल में भी, उनकी फिल्म मेकिंग में भी, उनके म्यूज़िक कंपोजिंग में भी, उनके क्रिटिक्स में भी, और तमाम वो खूबियाँ और वो जो सत्यजीत रे के अंदर पाई जाती थी, जो उनको तमाम दूसरे भारतीय लेखकों से और भारतीय फिल्मकारों से एक अलग श्रेणी में खड़ा करती हैं और एक अलग दर्जा देती हैं।